meteorological day to all of you, and this is a new month. So, Indian Express, the first article today is misplaced support. Now, let's see where and who has given support to whom in what case, right? देखते हैं April 3 का है ये. Reading what it contains here. Oh, यूनियन गवर्नमेंट की बात चल रही है. ठीक है, सितंबर 2021 यूनियन गवर्नमेंट announced a series of measures to support the ailing telecom sector. They announced a series of measures. Sir, they'll be doing or taking a few steps. अब क्या कब किया था उन्होंने announce 21 में. These included redefining what constitutes adjusted gross revenues, cutting the spectrum usage charges, and a moratorium or deferment on unpaid dues, among others. What can we understand from this? That the union government has come up with quite many measures so as to support the telecom industry. और सिर्फ एक नहीं है, ऐसे कई सारे measures उन्होंने किए हैं. तो ये तो एक background building हो जाता है. When we start understanding the article, let's segregate that into point of the author and the reasoning that he gives or the background that he builds or the facts and data that he gives to emphasize his own point. ये हमें समझना होता है. ठीक है, तो हम जब फिल्टरिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो ये होता है कि यहाँ से तो वो बैकग्राउंड बिल्ड कर रहे हैं और ये है पॉइंट कि द गवर्नमेंट हैज कम अप विद अ सीरीज ऑफ measures, announced a series of measures in 2021. As part of the measures now, the government also created an option that allowed for the conversion of interest amounts and dues pertaining to the deferred movement payment into equity. So conversion of whatever is there due, उसको equity में change करो, ये भी काम उन्होंने दिया था, ये भी उन्होंने एक ऑप्शन क्रिएट किया था. ठीक है, या तो डिफरमेंट होगा, ठीक है, या तो इन्होंने एक इक्विटी बना दो तो फिर ठीक है. In early 2023, the government chose to convert rupees 16,133 crore of interest dues owed by Vodafone Idea into equity. तो जो इन्होंने एक पॉसिबिलिटी रखी थी वही काम उन्होंने किया 2023 में. And now, a few days ago, it decided to convert the outstanding spectrum auction dues of rupees 36,950 crore into equity. That means इन्होंने यहाँ पे अलाउ किया था एक ऑप्शन क्रिएट करके और वही उन्होंने किया भी, कन्वर्ट कर लिया. As a consequence, the government will now own roughly 49% of Vodafone Idea. ठीक है, यहाँ पे आ गई ऑथर की बात. तो ऑथर डायरेक्टली बोल सकता था कि गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स किए हैं जहां पे उन्होंने 49% ओनरशिप कर ली वोडाफोन में. Just giving it bluntly, so the author has taken us through a series there. So he came up with 2021, what happened in 23, and what is now the present condition here. So all this is only the building up of the actual point. So this constitutes the reasoning, coming up with the main point still here. Existing promoter, the Aditya Birla Group, its stake in the entity will come down from 14.41% to 9.5%, and Vodafone PLC, whose ownership will fall to 16.07%, will, however, continue to exercise operational control. ऑपरेशनल कंट्रोल ओवर द कंपनी इन्हीं का होगा, लेकिन गवर्नमेंट के स्टेक्स हो गए 49% के करीब. ठीक है, तो ये तो उसने पूरा डेटा बेस दे दिया कि देखो ये है रियलिटी आज के तारीख में. ठीक. Now, this conversion will ease the company's cash flow woes, giving it breathing space in the near term. But the question is, will it help turn around the fortunes of the beleaguered telco? ठीक है, अब देखो बात ये है, ऑथर के मुताबिक उसने कहा कि ये जो कन्वर्जन था, राइट, कन्वर्जन ऑफ ऑल दोज ड्यूज इनटू इक्विटी, जो गवर्नमेंट ने कर लिया 49% के मालिक, फाइन. पर क्या ये कन्वर्जन इसको वाकई में हेल्प करेगा? So this comes up as a point of the author where he is concerned about something or the other, and that he will explain later, right? So the question is, will it help turn around the fortunes of the beleaguered telco? तो beleaguered का meaning भी समझ में आ जाएगा आपको. ठीक है, तो जो जिसकी हालत ऐसी है, miserable है, right? So is that company going to benefit with the conversion that the government has done of its dues into equity?
राइट, कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ये तो हो जाएगा, उसे ब्रीदिंग स्पेस कहते हैं कि हाँ एटलीस्ट सांस तो ले सकेगा। अभी वो एकदम से वो ऐसे नहीं है कि तलवार लटक रही है, वो नहीं है, राइट? एटलीस्ट इट विल गेट सम ब्रीदिंग स्पेस नाउ, but then is it going to really help this telecommunication company or no? Vodafone Idea has been seeing a steady erosion in its customer base. अब ऑथर उसका जस्टिफिकेशन दे रहा है या वापस हकीकत बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिर है क्या, राइट? सो वोडाफोन आइडिया हैज सीइंग अ स्टेडी इरोजन, फाइन। धीरे धीरे इसके कस्टमर्स कम होते जा रहे हैं, ये ऑथर का एक टेक। As of December 31, 24, the company had 199.8 million subscribers, down from 215 million in the third quarter of 23-24. Its average revenue per user stood at rupees 156 in September 24 compared to Bharti Airtel's rupees 233, Reliance Jio's 195. Company also has the lowest data usage GB per subscriber per month amongst the three players. Right? So this is giving you again one step क्या कम हुआ, second step comparison, and third again a comparison. The why is the author coming up with this comparison? To prove his point that yes there has been a steady erosion. तो ये point हो गया steady erosion का, justified by this comparison. Right? Now the objective of the author is not a comparison. Objective अभी भी ये है कि author ने ये article लिखा क्यों है, क्योंकि वो ये बताना चाहता है, क्वेश्चन रेज करना चाहता है कि जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है, जो कि यहाँ पर दिए हमें, राइट? सो वट एवर स्टेप द गवर्नमेंट हैज टेकन, लाइक कन्वर्टिंग ऑल दिस इनटू इक्विटी, was this the right thing to do? Secondly, is it going to really help this telco, right? So now, its strategy to improve its position seems to rest on undertaking capital expenditure to strengthen its 4G network and roll out the 5G services speedily, which could help push up subscriber numbers and revenues. Now, how is it going to improve its position? Right? Improving position क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ पे ये सबसे पीछे है इन दो कंपनीज के कंपैरिजन में। अब कंपनी क्या कर सकती है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी कि वो इंप्रूव करे अपनी कंडीशन को। किस तरीके से इंप्रूव करेगी? अंडरटेकिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू स्ट्रेंथन इट्स 4G नेटवर्क एंड रोल आउट द 5G सर्विसेज स्पीडीली। तो ये स्ट्रेंथन करेंगे 4G नेटवर्क को और स्पीडी सर्विसेज देंगे 5G वाली, तो जाके इसके सब्सक्राइबर नंबर्स एंड रेवेन्यूज बढ़ेंगे। बट as reported in this paper, Vodafone Idea also owes around rupees 2.3 lakh crore as of December 2024, of which 77,000 crore is on account of AGR dues and rupees 1.4 lakh crore is the spectrum liability. ये भी है अभी इसका पॉइंट। तो यहाँ पे उसने कहा कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए, लेकिन अभी भी यहाँ पर इसके नाम पर इतना कुछ है देना बाकी। तो बोले ऑथर ये डेटा क्यों दे रहा है? ये बताने के लिए कि गवर्नमेंट ने जितने करोड़ों की हेल्प की है, उससे क्या कंपनी इतना आगे निकल पाएगी कि जो उसके जो कंपैरिजन में उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो राइवल्स हैं, उसके हिसाब से वो चल सके। So the author is still raising a question there on the steps taken by the government, right? Now, any further conversion of dues owed by the telco would result in the government stake crossing 50%. Right? Now, this is again the reality that the author is showing. अगर ये इतना अभी बाकी है इनका ड्यूज, अब अगर इतना बाकी है और गवर्नमेंट ने वापस वही कन्वर्जन वाला ओपिनियन किया, कन्वर्जन वाला जो पॉइंट था वो किया, कन्वर्टिंग इट इनटू इक्विटी, if it follows the same thing, then the government stake will be more than 50. Should continued support be extended to the financially stressed telco? That means should the government spend this much again कि गवर्नमेंट की हो जाएगी वो फिर 50% से ऊपर हो जाएगा, गवर्नमेंट अगर अब ज्यादा हेल्प करेगी, 49 तो हो ही गया है। ठीक है, अगेन द ऑथर इज कमिंग अप विद दिस क्वेश्चन दैट ही इज वरीड अबाउट। Now the Indian telecom sector is dominated by two strong players. Again the author is giving you the information sort of, या क्लैरिफिकेशन भी नहीं है, एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन जैसे वो दे रहे हैं कि देखो ये हकीकत है। क्या है हकीकत, देखते हैं। Dominated by two players, Reliance Jio and Bharti Airtel, there is a concern that in the absence of support extended to Vodafone Idea and with public sector telcos continuing to struggle, a duopoly like market structure would be to the detriment of consumers.
ठीक है, अब ऑथर इस बात पर बोल रहा है कि देखो गवर्नमेंट ने ये नहीं किया होता तो, अगर उन्होंने वोडाफोन को हेल्प नहीं की होती तो क्या होता, मार्केट में सिर्फ दो कंपनीज रहती, जियो और एयरटेल। आइडिया कहाँ है? नो आइडिया, right? Now this is what he is coming up with, the flip side of the coin. Now had the government not helped Vodafone, then those two companies would come up with a duopoly. अब दोनों आपस में लड़ेंगे, दोनों आपस में भिड़ेंगे, नुकसान किसका होगा? कंज्यूमर्स का। तो एक थर्ड पिलर एस्टैब्लिश करना जरूरी था गवर्नमेंट के लिए कि उसे एटलीस्ट कुछ हद तक तो बचा दे, ताकि हम अभी भी आइडिया अच्छे से यूज कर सकें। A duopoly-like market structure would be to the detriment of consumers. But the focus of policy should be, अब वापस ऑथर ने एक पॉइंट तो बोल दी, फिर भी उसने कहा कि देखो फोकस होना क्या चाहिए था, it should be to protect competition, not financially stressed competitors. So yes, the step taken by the government was, this is the reasoning for it. The author is justifying कि ये सही था, लेकिन फिर भी पॉलिसी क्या होनी चाहिए कि कॉम्पिटिटर्स को बचाएं जो कि फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड आउट है, या कंपटीशन बरकरार रहे, ये होना चाहिए। सो फोकस कॉम्पिटिटर नहीं, कंपटीशन होना चाहिए कि डुओपोली दुनिया के लिए, लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए सही नहीं होगी, इसीलिए बचाना वोडाफोन को जरूरी है। इसलिए नहीं कि वो फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है तो चलो हेल्प कर दें, ये इंटेंशन नहीं है सही। दिस इज व्हाट द ऑथर emphasizes. So government should facilitate the entry and exit of private players. ये होना चाहिए। Entry and exit of private players. Any other intervention will only risk distorting the market, right? अगर इससे ज्यादा और intervention किया तो उससे तो market lopsided जैसा हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, where you are intervening with the market forces. That will not be right. What is the task of the government is that it should only facilitate whether a private player is entering that sector or it is exiting the sector. तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा वो स्मूथ प्रोसेस कर लेना चाहिए। अगर कुछ और हेल्प करती है तो वो फिर मार्केट फोर्सेस के हिसाब से सही नहीं होगा, वो डिस्टॉर्टिंग हो जाता है, right? So the step, now understand, let us come to the main idea. चलो हम वहां पे देख लेते। मेन आइडिया के साथ साथ वोकैबुलरी आपका हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे ज्यादा कोई वर्ड्स हैं नहीं इसमें, ठीक है। now as a consequence the government will now own roughly 49%, जैसे मैंने डिस्कस किया था। इसके पहले ऑथर सिर्फ हमें डेटा दे रहे हैं कि पहले क्या था, कितने ड्यूज हैं, और गवर्नमेंट ने पहले 23 में कितना किया और अब कितना है। so finally the government is owning 49% of this Vodafone idea, right? सो मोरेटोरियम और डिफरमेंट का मतलब, हमने डिफरमेंट किया हुआ है जब हमने मेंटिक्यूस किया था, तो भी डिफरमेंट का मतलब होता है थोड़ा सा रुक के लेना, थोड़ा बाद में लेना, थोड़ा पोस्टपोन कर लेना, राइट? नाउ विल इट हेल्प टर्न अराउंड द फॉर्च्यून्स ऑफ द beleaguered telco? So beleaguered is somebody who is like in a very miserable condition, right? The plight of the people there, or of the nation, or of the company. Well, whatever is the suffering that that person or that company is going through, or the country is going through, तो वो beleaguered nation, beleaguered company, मतलब पूरी परेशान खस्ता हालत में जो रहती है उसे beleaguered कहते हैं, ठीक है। तो ये भी है कि क्या ये बात सही थी, इससे क्या कंपनी को फायदा होगा, दिस इज द क्वेश्चन रेज्ड बाय द ऑथर, right? And then all this was only the comparison, as I had given you in the earlier slide also. डेटा भी था, कंपैरिजन भी था। फिर अब कंपैरिजन हो गया, बता दिया उसकी क्या है हकीकत। Now the author says what should be the strategy, how it should improve, right? When it talks about improving, that these are the steps taken, should be taken, and then he comes up with this, that should there be continued support to the financially stressed, right? Because of all this data, again, author comes up with whether this support should be extended still to the financially stressed telco, ये होना चाहिए या सिर्फ हेल्प होनी चाहिए। Then in the last paragraph
there's a concern in the absence of support extended to Vodafone, and with so the concern was still there only. Detriment matlab harm. Duopoly, where there are two big guns in the market. से दो ही मेजर कंपनीज अगर मार्केट में होती है, ठीक है, तो ये मोबाइल इंडस्ट्री में देख लो, अगर टॉप टू है सिर्फ और बाकी कोई मोबाइल नहीं खरीदता, बिल्कुल बेकार है, और दो मतलब ऐसा होता है कि टू टॉप कंपनीज आर हियर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर पोजीशन पे, ऑलमोस्ट राइट, नॉट ऑलवेज, ऑलमोस्ट, एंड देन द अदर्स आर हियर. अगर ये यहाँ पर है, ये वाली कंपनी भी यहाँ पर है, तो बाकी के कंपनी में बहुत दूरी है, इतना डिफरेंस है कंपनीज में, तो दे आर नोवेयर इन द मार्केट, यू कैन से yes, quite a few consumers are using these mobiles, right, but still टक्कर किसकी है, इन दो कंपनीज की. अगर टक्कर वाली बात हो जाती है एप्पल सैमसंग, राइट, दोनों का अपना अलग अलग खेल है, लेकिन अब यहाँ पे आप वीवो देखोगे, यहाँ पे ओप्पो देखोगे, तो इनका और इनका कोई कंपैरिजन नहीं है इस तरीके से. अगर ऐसी दो कंपनीज होती है सिर्फ, तो ऐसी डुओपोली कहते हैं. अगर सिर्फ एक ही कंपनी टॉप पर होती है तो उसे मोनोपोली कहते हैं, राइट. और इसी तरीके से अगर कुछ ज्यादा कंपनीज होती हैं तो ओलिगोपोली हो सकता है. सो दिस वाज द रीजनिंग दैट ऑथर गेव कि ठीक है, गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया वो ऐसा सही है. उसके बाद व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू इज द पॉइंट, कि प्राइवेट प्लेयर्स का एंट्री किसी सेक्टर में और एग्जिट उस सेक्टर से, ये करना उनके लिए सीमलेस होना चाहिए, ये करना उनके लिए स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए. पर एक फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड आउट अगर पार्टी है या कंपनी है, उसको जरूरी है इतना फाइनेंशियल हेल्प करना, इसका कंसर्न है ऑथर के पास, राइट. सो द ऑथर इज वरीड और इज कंसर्न्ड अबाउट दिस पॉइंट. So I hope you have understood this. So government support is misplaced. This is the author's opinion. Very strongly stated, but yes, justified also. According to the author, उसने अपनी clarification भी दे दी, explanation भी दे दी है कि मेरा ये opinion क्यों है. Government intervention for financially stressed telco is problematic. Policy should protect competition and not competitors. ये वाली वो line थी जहां पे author ने अपनी बात बढ़िया तरीके से कह दी. अब कन्वर्जन विल ईज द कंपनीज कैश फ्लो, ये तो ठीक है, तो जो उसके प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े से ईज आउट हो जाएंगे, बट गिविंग इट ब्रीथिंग स्पेस इन द नियर टर्म यहां तक सही है, पर पॉलिसी शुड प्रोटेक्ट द कंपटीशन एंड नॉट कॉम्पिटिटर्स, ये उसका मानना था. ठीक है, आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस. कमिंग अप विद अ वोकैबुलरी, एज आई सेड, पैराग्राफ में वोकैबुलरी इतनी ज्यादा कुछ खास थी नहीं, तो मैं दूसरे आर्टिकल का, इसी न्यूज़पेपर के दूसरे आर्टिकल का एक पैराग्राफ मिल गया. लेट अस जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस, राइट. In recent times, across states and under government, across political lines, municipal authorities have bulldozed two fundamental principles of justice. ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की बात थी. हेडिंग आई थिंक जो है स्टॉप द बुलडोज ऐसे करके है, ठीक है. बुलडोज यानी पूरी तरीके से वाइप आउट कर देना. सो देर आर क्वाइट मेनी वर्ड्स फॉर इट. सो लेट मी राइट डाउन हियर. एक्सटर्मिनेट कर सकते हैं, यू कैन क्विकली गो ऑन राइटिंग. एक्सटर्मिनेट हो सकता है, इरेज होता है, रेज्ड होता है पूरी तरीके से खत्म कर देना, राइट, दैट इज रेज्ड. एंड एक्सपंज्ड, ठीक है. सो इरेज, रेज, एक्सपंज, एक्सटर्मिनेट, बुलडोज्ड, वाइप आउट इज द इजिएस्ट वन. इरेडिकेट आप कर सकते हो कोई भी चीज. अब यहाँ पे सिर्फ इसकी बात नहीं है, बिल्डिंग्स की बात नहीं है, बिल्डिंग्स में तो बुलडोजर चला लेते लोग. किसी भी चीज को, किसी भी सोशल इवल को खत्म कर देना, जड़ से खत्म कर देना इज टू इरेडिकेट इट, अपरूट इट, राइट, इरेज इट. रेज हो जाते हैं जब आग में, जब मकान या दुकान जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, दे आर रेज्ड, राइट. इरेज कर सकते हो हम, जब कुछ भी इरेज कर देते हैं, यहाँ से रबर यूज करना यानी इरेज हो जाता है ना, इन दैट वे समथिंग दैट इज वाइप्ड आउट टोटली, राइट.
So bulldoze, now here they are actually talking about bulldoze. So the first is that every person is innocent until proven guilty. ये जस्टिस का कहना है, ये दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं. And can be punished only after due process. ठीक है, तो he is to be proved innocent unless proved guilty. And then whatever the process is, it should be in due process. मतलब अगर उसको पनिशमेंट मिलती है तो बराबर कायदे के हिसाब से मिलनी चाहिए, सिस्टमैटिक तरीके से मिलनी चाहिए. ठीक. By demolishing the homes of those accused of crimes and sometimes even those of their family members, demolish करना, bulldoze करना मतलब पूरी तरीके से खत्म कर देना. डिमोलिशन फोर्सेस चलती हैं, टास्क होता है. ठीक है, मतलब जहां पे एनक्रोचमेंट हुआ तो वहां के जितने स्ट्रक्चर्स हैं उसे खत्म कर देना, हटा देना, बुलडोज कर लेना. ठीक है, ये वो बोला. तो अगर किसी ने क्राइम कमिट किया है और आप उसकी जाके प्रॉपर्टी को एज ए बुलडोज कर देते हो तो वो नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाट द Supreme Court has said. So, by demolishing the homes of those accused of crimes and sometimes even those of their family members, governments have also shown a complete disregard for the Constitution's letter and spirit. So, they have disregarded the letter and spirit. जब हमारे पास justice और legal law related articles आते हैं तो बहुत बार हमारे पास letter and spirit की बात आती है. तो by letter and spirit और in letter and in spirit का मतलब होता है spirit यानी उसकी जान जो है. तो वर्ड टू वर्ड को पकड़ के बैठना ये सही नहीं है. और कई बार वर्ड टू वर्ड के हिसाब से जब बात होती है तो उसे इन लेटर कहते हैं. ठीक है, तो एससी के हिसाब से गवर्नमेंट ने क्या किया है, कंप्लीट डिसरिगार्ड. किस चीज का, कॉन्स्टिट्यूशन के लेटर का भी और स्पिरिट का भी. इट्स गारंटीज ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम्स एंड प्रोटेक्शंस अगेंस्ट स्टेट आर्बिट्रेरीनेस. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को गारंटी दी है कि अगर स्टेट मतलब गवर्नमेंट अगर अपनी मर्जी से चलने लगेगी आर्बिट्ररी, राइट, तो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी रक्षा करेगा. लेकिन गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया है और बुलडोजर घुमा दिया है. राइट, अंडरस्टैंड दिस. So you have this word arbitrary. That means individual. That means my discretion, my word, my opinion. ठीक है? That the bulldozer disproportionately targets vulnerable communities. Vulnerable is weak, easily affected. ठीक है? तो ये weak के हिसाब से आएगा. Weak and vulnerable communities हैं. तो ये बुलडोजर किस पे चलता है, किसको टारगेट करता है, vulnerable communities को. And that the instant justice it perpetually provides is more akin to vigilantism. ठीक है, इंस्टेंट जस्टिस अगर वो प्रोवाइड करता है परपेचुअली, मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये उसका पर्पस है. ठीक है, इट इज मोर अकिन टू, एक अकिन टू का मतलब होता है सिमिलर होना. ठीक है, विजिलेंटिज्म का मतलब हम नजर रख रहे, विजिलेंट, राइट, ये नजर रखना होती है कि ठीक है हम एक मॉरल पुलिसिंग है तो हम इस पे नजर रखेंगे कि देखो ये सही है ये गलत है, इस हिसाब से. So this is what the person says. The SC says, then state action has also become a part of poll campaigns. In this context, the order by the Supreme Court bench comprising Justices A.S. Oka and Ujjal Bhuyan must be heard by executive authorities across the country and its message heeded. Heeded means taken care of. मतलब उस पर फॉलो करना चाहिए, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए. तो जो एससी ने कहा है वो कंट्री के एग्जीक्यूटिव जो पिलर है उसे सुनना चाहिए ध्यान से. ये जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, फिर लेजिस्लेटिव होता है, ऑल दीज आर द पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट. उसको ध्यान रखना चाहिए और फिर इस तरीके से अननेसेसरीली बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए. दैट इज व्हाट द एससी सेज. नाउ दिस इज ओनली वन पैराग्राफ ऑफ द आर्टिकल, यू नीड टू रीड मोर, right? And related words you can note them down and collect them, right? So यहाँ पे मैंने सिर्फ एक पैराग्राफ लिया है कि तो आगे तुम्हारे साथ थोड़े बहुत वर्ड्स हो जाएंगे. अब मोर टू रीड है. द हिंदू में से तीनों आर्टिकल्स हैं. रिंग ऑफ फायर अराउंड ईरान इज टाइटनिंग, तो ये आपका जियोपॉलिटिकल हो जाएगा. जिस किसी को प्रॉब्लम होती है जियोपॉलिटिक्स समझने में या बाकी दुनिया में क्या हो रहा है तो काइंडली रीड दिस. रेसिप्रोकल टैरिफ डायलेमा, ये इकोनॉमिक से रिलेटेड हो जाएगा. अगर ये जियो से रिलेटेड है, ये इको से रिलेटेड है. अब हाउ डिड द म्यांमार अर्थक्वेक अकर, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी आ जाएगा इसमें. ठीक है, थोड़ा सा आपके पास मतलब एक एनालिटिकल व्यू समझ में आएगा कि आखिर म्यांमार का जो इतना भयंकर अर्थक्वेक था ये हुआ क्यों और कैसे हुआ.
what are the reasons, what are the implications, or what and why, right? So you'll be able to understand this complete article. Good. Different genre हो जाएगा तो ये 3 articles आप कर सकते हो. And so thank you, and that's all for today. And I hope you will be reading these articles, and they are right, they are quite interesting articles, and of course, as I say, of different genres, right? So that's all for today, and thank you, and stay logical and stay positive, and see you.